CLAT preparation is clearly grueling. It's quite taxing, and a lot of us prepare for about one year. I would say 3 months, 6 months, different stages in the preparation. We tend to increase our mock scores, and there are certain students who बोलते हैं कि यार we have reached to a point where we're getting an above average score now. We're getting a decent score now, right? A lot of us struggle also, but at the end of the day, when we go to the exam, we just want to do our best. And we have that capacity also कि अगर हम एग्जाम को अच्छे से देकर आए, if we know all these sections, we could really do well. The mock marks wouldn't matter at the end of the day, because ultimately वो जो आपका फाइनल एग्जाम है, जो क्लैट एग्जाम है, वही मैटर करेगा. बट कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है एग्जाम में which we sometimes fail to encounter, because क्या होता है when you're going on your CLAT day, there are a lot of things running in your mind, right? What if I'm not able to do well? And I hope the paper is on the easier side. I hope, there are certain things, for example, GK में ऐसे questions आ जाए which I have read about. तो ये कुछ चीजें होती है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है. Last moment तक we're trying to read something, revise something, and as a result, we are not able to plan those 2 hours very properly. Now, let me give you a classic example of what happened in CLAT 2025. So we all know that the CLAT pattern had changed in 2020. So from 2020 till 2024, they had kept a similar sort of a pattern, जहां पर उन्होंने एक भी question, particularly in the logical reasoning section, they did not give any analytical reasoning question for 5 years. 6th year में आके they gave you a 6 mark का question on analytical reasoning. Now see, a lot of us prepare for CLAT properly. अगर आप let's say if you're prepared for 12 minutes to CLAT कहीं से भी, तो ज्यादातर जगहों पे आपको analytical reasoning करवाई जाती है for CLAT also, है ना? We to surely do it. We exactly did the same sort of questions for this particular exam. So our students were quite prepared कि हम लोग को analytical reasoning अगर CLAT में आता भी है तो हम कर लेंगे. Now the problem here was that some students didn't prepare. So let's say for example, out of 100 students, 30 didn't prepare for analytical reasoning. उनको लगा नहीं CLAT में तो 5 साल से नहीं आ रहा, ALET हम दे नहीं रहे, तो 30% तो वैसे भी आउट हो गए वहां से. Now जो 70% चंक बचा था ना, they couldn't realize while solving it that the question in the CLAT paper was wrong. Out of that passage, 4 questions के आंसर बन ही नहीं रहे थे. बार बार उन्होंने पूरा वो सीटिंग अरेंजमेंट बना के देखा, they tried everything. But things didn't work out, and most of them spent 10 to 15 to even 20 minutes on that question. अब यहाँ पर बहुत बार mentors like me keep telling you all the time that exam day पर keep your calm, every question is important, try to see all 120 questions and then see how many you can answer. But जब आप एक ही क्वेश्चन को या फिर उन 4 ही क्वेश्चंस को 15 मिनट्स दे दोगे, 10 मिनट्स दे दोगे, 20 मिनट्स दे दोगे, you will definitely miss out on something. तो अब क्या होता है, you gave it 15 minutes, क्वेश्चन गलत था, you still couldn't answer it, and आपके दिमाग में वहां से टेंशन होनी शुरू हो गई कि यार 15 मिनट वेस्ट भी हो गए, आंसर भी सही नहीं आया है, what do I do about it, right? और वहां से उस टेंशन में a lot of people, वहां से उनके पेपर का डाउनफॉल शुरू हो गया. At least मैं आपको बोल सकता हूँ 70 to 80% students who wrote CLAT 25 I mean, they had this major problem, जहां पर वो उस पॉइंट पर चोक कर गए. आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, है ना? After the exam, even now, a lot of students have that trauma of that question. So see, you have to understand this. अगर आप कोई mock test भी कर रहे हो, let's say उसमें कोई ऐसा vague question है और something very huge, बहुत ही बड़ा passage है, मान लो 450 was the maximum limit, 600 words का passage दे दिया है, right? So how do we solve that? How do we do that? Do we give it a lot of extra time? The answer is a big no. अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है पर्टिकुलर पैसेज इज टू बिग, अ पर्टिकुलर पैसेज इज लेट्स से अ फिलॉसफी पैसेज और इकोनॉमिक्स और अ फाइनेंस पैसेज, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, लीव इट एट दैट पॉइंट इन टाइम. डू द अदर क्वेश्चंस दैट यू कैन डू. हर सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते ही होते हैं व्हिच यू श्योरली नो. तो प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से आई डू इंग्लिश फर्स्ट, देन आई गो फॉर लेट्स से जीके, देन आई गो फॉर लेट्स से लीगल, फिर मैं लॉजिक करता हूँ. अब लॉजिक में मैंने इतना ही भारी क्वेश्चन देख लिया इन CLAT 2025 which I am not able to solve. I gave that extra time और वहां पर मैथ्स हो ही नहीं पाया. मैथ्स आसान था. If I had attempted it, I could have done most of the questions correctly there. But I couldn't reach maths, or at least not both the passages in maths, because मैंने वहीं पर 15 मिनट वेस्ट कर दिए थे. So see, plan the exam in a way that you are not too emotional about questions. Now what does that mean? देखो, जब हम CLAT की प्रिपरेशन करते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, all of us have a preferred section. हो सकता है कि I like legal, somebody else could like logic, somebody would like maths, English, GK, कुछ भी आपको पसंद हो सकता है. Now, when we are solving, let's say I like legal. While I'm solving legal,
I would always imagine that I will solve all the questions or at least most of the questions in legal. क्यों मैं ऐसा सोचूंगा? Because मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, मुझे आना चाहिए. I have prepared so hard in legal, I have worked so hard, I have done all the concepts, I have practiced a lot. तो मैं ना एक ईगो पर ले लूंगा अपनी बात कि मुझे लीगल क्वेश्चन कैसे नहीं आ रहा. भाई हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, तो आप इतना ज्यादा स्टक मत रहो एक क्वेश्चन पे. एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स. अगर ऐसा होता कि भाई लीगल के हर क्वेश्चन के 2 नंबर है, लॉजिक का 1 है, मैथ्स का 1 है, यस आई वुड हैव माई सेल्फ टोल्ड यू कि लीगल को ज्यादा फोकस करो, वहां पर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, ज्यादा नंबर मिल रहे हैं. हर क्वेश्चन का 1 नंबर है. आप खुद सोच के देखो कि इज इट वाइज टू स्पेंड 15 मिनट्स ऑन दोज 4 क्वेश्चंस एंड देन लीव आउट द लास्ट के 5, 10, 12 जितने भी क्वेश्चंस थे. क्या फायदा हुआ, उसका नुकसान ही हो गया. वो 4 क्वेश्चन भी क्लैट कंसोर्टियम की बाद में हट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया था कि क्वेश्चन गलत है, उसमें किसी को कुछ नहीं मिला, 15 मिनट माइनस हो गए बस आपके टाइम. सो प्लीज थिंक इट दैट वे. और ये मॉक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधे जाके फाइनल एग्जाम में नहीं लगता. मॉक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इफ यू गाइस वांट टू सी ऑल 120 क्वेश्चंस, जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन गलत आएगा तो ही आपको छोड़ना है. आपको कई बार पता नहीं चलेगा वो गलत है. बट लेट्स से इफ इट्स टू लेंथी और समथिंग दैट यू फील कि थोड़ा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर का पैसेज है, आप उसको लीव कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर आपको लेट्स से लीगल आप नंबर 3 पे कर रहे हो, नंबर 1 पे कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, तो आपको एक पैसेज बहुत बड़ा और अजीब सा लगा, तो आप जरूरी नहीं है कि पूरे सेक्शन को करके आओ, एक पैसेज छोड़ सकते हो. यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, है ना. और आप डेफिनेटली दिमाग में रखोगे या फिर कई बार मार्क कर लोगे कि दिस इज व्हाट आई हैव लेफ्ट एंड आई नीड टू डू दिस. आपको अपने OMR से पता चल जाएगा. जब लगातार 5-6 क्वेश्चन पे आपने कुछ भी मार्क नहीं किया होगा, यू विल रियलाइज कि अच्छा मैंने ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए. इसमें लेकिन सबसे जरूरी ध्यान रखने की चीज है कि हम लोग OMR सही भरें. लेट्स से फॉर एग्जांपल लीगल रीजनिंग स्टार्ट एट क्वेश्चन नंबर 56 लेट्स से, ठीक है, एंड 56 से लेट्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं, गोज ऑन टिल 85. तो अगर आपने 80 to 85 क्वेश्चंस छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 80 to 85, तो और लॉजिक स्टार्ट करते हो तो 86 पर ही मार्क करना है. कभी कभी हम 81 पर गलती से कर देते हैं, 80 पर गलती से कर देते हैं, बिकॉज उसी के नीचे सीधा सीधा स्पेस है. तो थोड़ा सा स्मार्टली करना है. तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप 120 मिनट्स में सारे 120 क्वेश्चंस देख पाते हो ना, देन यू कैन जस्ट कीप इट सिंपल. ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स इन अबाउट 115-16 मिनट्स. ये प्रैक्टिस बहुत काम आती है, बिकॉज अगर आपके पास 4-5 मिनट कुछ ऊपर नीचे होता है, इन्विजिलेटर ने टाइम वेस्ट कर दिया या फिर कहीं भी आपका टाइम वेस्ट हो गया, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में आप अटक गए, यू विल स्टिल हैव टाइम टू कंप्लीट द एंटायर पेपर बिकॉज यू आर द हैबिट ऑफ 150. अगर आप 120 मिनट्स में सारे क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हो, तो फिर उसको 120 में प्रॉपरली करने की कोशिश करो, सीधे 115 में करने की कोशिश मत करना. बट द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज about 75 to 80% CLAT aspirants missed this trick because जब एग्जाम में जाते हैं हम ऑलरेडी वो एडिड प्रेशर के साथ जाते हैं. और जब वो प्रेशर एकदम से हम पे हावी होता है, बिकॉज क्या होता है, जब तक लॉजिक पे आते हैं, जनरली लोग लॉजिक को 4th नंबर पे करते हैं, थोड़ी सी फटीग ऑल्सो सेट्स इन, है ना, थोड़ी सी थकान हो जाती है, बिकॉज वी बीन रीडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, है ना. ऐसा तो है नहीं कि पेपर बहुत ही परफेक्ट जाता है, किसी का पेपर परफेक्ट नहीं जाता, है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन से हल्का सा कई बार कम ही चला जाता है, राइट. तो हम वहां पर भी थोड़ा सा दिमाग में टेंशन रहती है कि वी आर नॉट डूइंग टू वेल. जब हमें लगता है कि अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट तो हमने किया था, ये क्वेश्चन तो हमें आता है, तो हम उसमें लग जाते हैं, है ना, चाहे वो उसमें कितना भी टाइम लग जाए, इसको सॉल्व करके ही निकलेंगे. एंड दैट इज वेयर वी मेक मिस्टेक. So you guys are smarter than this. Think about it and how to go about it is also a skill. Question को leave करना एक skill होता है कि मान के चलो CLAT aspirant से question solve करने के लिए नहीं है, उसको छोड़ने के लिए भी है, right? तो अगर ये स्किल आपको समझने में दिक्कत होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिस समझ नहीं आती है, स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती है, टाइम टेबल कैसे बनाए, all of that at 12 minutes to CLAT, you can visit our website 12minutes2clat.com or download our app from Google Play Store or App Store, and we'll be very happy to guide you. We've recently launched a couple of new batches for CLAT and ALET, जिनके साथ में प्रिपरेशन करेंगे for 2026, उत्कर्ष and उत्कर्ष Plus. You guys can surely become a part of this. बहुत easily आपको गाइड किया जाएगा by India's top educators. We're always you can say contact on these numbers. They'll be very happy to guide you till the end of your preparation. Obviously, you can ask about the batch also, how to go about it. और end of the preparation तक भी these people will keep you hand holding. भाई कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, what are the other things that you want to discuss, है ना. तो we will be doing that at the you could say जो remaining time है आपके particular सेशन में या फिर जो पर्टिकुलर एग्जाम में, राइट. तो जस्ट कीप इट सिंपल, है ना, नॉट टू मच टू वरी, बट जस्ट वो स्ट्रेस और यू कुड से प्रिपरेशन का एक बैलेंस करके चलना है. बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आप प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाते हो, है ना, और आपसे प्रिपेयर करते हो ना पूरे टाइम, कई लोग होते हैं 12-14 घंटे पढ़ लेते हैं दिन में, तो वो स्ट्रेस लेवल हमको लगता है कम है, बट इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ यू कुड से एक तरह से कह सकते हो कि फटीग हो जाता है हमको, है ना. वी आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कुड से ऑन अ रेगुलर बेसिस,
So try to do this, keep it simple, do a lot of mocks, and you will definitely be able to get into this practice. And we will be very happy to guide you at 12 minutes to CLAT to ensure that you guys are at the right path to crack CLAT as well as ALA 2026. दोनों एग्जाम क्रैक करेंगे, दोनों ऑप्शंस अपने पास रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम वो चूज करें कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है. कोई कॉलेज हमें ना बताए कि आप यहाँ पे आ सकते हो नहीं, राइट? ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट.